and having a commerce graduate getting into IIT, आप Python सीख जाने से it never guarantee you to become a data scientist. और बताइए सर क्या चल रहा है। बस बहुत बढ़िया निजाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर दिस गुरु शो। आप एक बार थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और करंटली क्या चल रहा है। राइट, मैं एक छोटा सा अपना ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूँ। जैसे यू कैन यू नो माय नेम इज बिस्वाजीत नायक। बेसिकली आई कम फ्रॉम उड़ीसा, right? उड़ीसा। And my typical educational background, I am a commerce graduate, plus I have done my MBA, plus I have done one PGDCA from a private institution, right? So that is typically my academic background. And again, I have come from a ODIA medium school, right? ओके। And I had started my career initially in the year of 1995. I had started my career in primarily in software product marketing, right? Licensed software product marketing, now what it is known as commercial of the self, like Statistica, SPSS. This falls into the category of the commercial of the self software. तो मैं अपना करियर 1995 से चालू किया था। एक नेशनल हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर थे, बाइनरी सिमेंटिक्स लिमिटेड करके, तो हम्म। वहां से हमने चालू किया था। तभी से हम ये जितना सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे मैं बता रहा हूँ, दैट टाइम ऑल्सो वी वर सेलिंग एसपीएसएस, राइट? सो देयर इज अ वेरी फनी स्टोरी बिहाइंड दिस। So since I was selling all the software to that institution, उससे पहले हमने लोटस स्मार्ट स्वीट उनको सप्लाई किया था। तो लोटस स्मार्ट स्वीट जब हमने सप्लाई किया था, द कॉस्ट ऑफ द लोटस स्मार्ट स्वीट वाज 19,000 रुपीज। ये 1995 की बात है। हाँ, ये 1995 की बात है। ठीक है, तब 19,000 लोटस स्मार्ट स्वीट का दाम था। और जब हमने एसपीएसएस अप्लाई किया उनको, तब फुल पैकेज दिया था। मेरे ख्याल से 5.1 कुछ वर्जन था या 6.0 था, डॉस में था वो। तो एक सीडी में आया था और उसका दाम था 2 लाख रुपए। ओके। तो परचेज मैनेजर स्टेट में, अरे भैया तुमने अभी हमको इतना बड़ा डिब्बा ला के दिया और उसमें हमको 21 या 22 फ्लॉपी डिस्केट थे 3.5 इंचेस के, और उसका दाम आपने लगाया 19,000 रुपया, और अभी आप हमें एक फ्लॉपी डिस्केट दे रहे हो और उसका दाम आप लगा रहे हो 2 लाख रुपया। आप कुछ हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हो? So that is the age we have come through, right? So this was the time when I knew the software and all these things. But my analytics journey started in the year of 2005 when I joined SPSS as a manager measure accounts based in Delhi. And my role was with SPSS. Typically, I was looking for the government accounts, typically the ministry. Then in the year of the 2007, I joined another software publisher called StatsSoft INC. They were the manufacturer of the software Statistica. Uh, Here, slightly the role has changed because earlier my role was very, very limited to the government ministry. Here, my role was changed, like there is no any domain specific, right? So I get a chance to know more. And typically these kind of the scientific software, right, or the analytical software, largely used by the academics and the research intensive organization. That time, even now also, you get into SAS or SPSS or Statistica, 70-80% customers, they come from academics and the research institutions. And gradually my role was changing, right? I was getting a little more and more responsibility. And 2007, from the day one, I had another additional responsibility of hiring my team, right? Who can support me on Stats of India growth and all these things, right?
And I have been very fortunate so far. I had a group of amazing people, right? So they have been this thing. And we have seen, and typically that time also, since the stats of India are not very large, we had made it a point like we will be picking up the people from the C class city, from the B class university, right? Those are the needy people. Those are not getting the chance to come to the mainstream, right? And Hmm. I'm very fortunate to submit today. I have been very fortunate, and I was really, they had never proved me wrong, right? And many of the people, they have, my associates or my colleagues, they have accomplished heights in their professional career. They're very much successful today. They have been working best for of the organization, MNCs, and so on and so forth, right? एक सर क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने बताया कि आप उड़िया स्कूलिंग जो आपकी है उड़िया बोर्ड से है, तो उड़िया से इंग्लिश में स्विच, क्योंकि जॉब में तो सब इंग्लिश का यूज है। तो ये हम जितना भी उसको हम जितना भी पेट्रियाटिक हो जाए, नेशनलिस्ट हो जाए, बट दैट इज राइट, यू कैन नॉट साई अवे इफ सपोज यू आर नॉट स्पीकिंग लैंग्वेज, your acceptance in the job market will be very low, and it will be really an obstacle for your professional growth, because today we consider ourselves as a global citizen, right? The global citizens means we should speak a language where the whole world will understand. मैं इस मामले में थोड़ा सा मतलब खुशकिस्मत था, क्योंकि जब हमने ग्रेजुएशन के बाद आए थे, मैं दिल्ली आया था उड़ीसा से। एक्चुअली आई हैड कम टू प्रिपेयर फॉर ए सिविल सर्विस। ओके। ठीक है, तो ओके। हम जो हमारे जो ऑल्दो आफ्टर सम टाइम आई कुड रियलाइज आई एम नॉट a civil service materials, so I withdrawn myself, right? But around myself, we were six people were there. Out of the six, like one in the first chance itself, he got into the civil service. So that time we had a regular practice that, right, we were subscribing all the newspaper and we were practicing ourselves, ओके। right? And typically all were the Odia medium, right? And many of them, like as I said, out of six, one got into the civil service in the first chance, right? Another three, they got the Odisha administrative service in the very good rank, right? हम्म। So that was the thing. And right, what typically speaking English, adoption of the English, right? Uh, it's something like your fearness is only your limitation, right? Because we keep lot many like boundary within ourselves, हम्म। right? And राइट। it is I have seen in many of the occasion also, once you are fearless, right, your chances of winning for anything, right, will be much more higher compared to, like, suppose you go with some kind of the fearness, right? अगर ये होगा तो वो होगा, like there are you pre put the condition, many condition before you attempt, then hopefully the chances will be less compared to you go fearless, right? So या that is the राइट। thing. तो वो कुछ मेरे साथ बहुत आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैं खुशकिस्मत रहा हूँ इस मामले में। तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस बढ़ता गया, और आई हैड नेवर बीन ए विक्टिम ऑफ coming from a Odia background or Odia schooling and competing with this thing. I had never failed. Initially, when I had taken the admission in the APTEC in Delhi for PGDCA, that was a very popular course with some UK certification, I was developing an inferior complex, right? Once coming from Odisha, coming and getting into the Delhi, the day-to-day, this interaction, English and all, right? So I was little, but fortunately, my ambience and the environment in the back end, right, in my environment in Patuaria Sarai, that has helped me a lot in order to cope with
this English speaking or adoption of English as a first language, right, in the professional world. So it has not been a challenge so far. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपने बताई, जो 19 डिस्क और वो एक डिस्क जो वो ट्रांसफॉर्मेशन था, तो उस कंपनी ने उसको अडॉप्ट किया एसपीएसएस को उस टाइम पर। पीएसएस किया क्योंकि वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था, लेकिन इस तरह का मेंटेलिटी था लोगों का, उस तरह का हम भी दौर देखे हैं। एक एक तब आपका कंप्यूटर आते थे, एक रूम में रखते थे, इट वाज अ वेरी वेरी बिग कंप्यूटर, राइट, यू नीड टू open your schools, you get into this thing, right? So हम्म। I know because again in 96 97 I was the first one to sell some kind of the Microsoft Office, Microsoft Windows 3.11, this MOLP, the multi-user license pack to the RBI of Kolkata. So ओके। during this conversation, right, what I did, there was a lady, I won't take the name, right? इट्स ओके। So by mistake, what I did, I touched her PC, the screen, right? Because that time the laptop was very, very expensive, हम्म। right? So she scolded me left and right like anything. Just she was about to throw me, right? We had a very good the customer, the buyer and seller relationship with this lady. But once unknowingly I touched that screen, right? So she had a notion like the screen may damage, or how in a bare hand, how do you touch my screen, right? So that situation we have come from some kind of the mainframe age to now whatever tablet age and all this stuff. Fine. Yeah. So that is the thing, right? But what is the turning point of my life in terms of suppose I take the stock of the situation, what I have done in the space of analytics, I will list my achievement. So today I have delivered more than 200 guest lecture sessions, right, across academia, industry, and the engagement comes from virtually from every domain. And this engagement also includes institutions like ISI, IITs, IEMs, and many of the like A-tier institutions, right? And having a commerce graduate getting into IIT, and our programs largely targeted towards the faculty. It's not some kind of the students orientation program or something like this, right? So that itself demonstrate the power of analytics, the power of the software we deal with statistics that has given me the capacity and ability to deal mm, with such kind of people uh, successfully, right? So सर, that is the thing, and yeah. यस यस, ये जो आपकी, क्योंकि एजुकेशन कॉमर्स से थी और फिर आपने आईआईटी में भी ये वर्कशॉप्स करी, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको क्या महसूस हुआ कॉमर्स से होकर के और आईआईटी? नहीं देखो निजाम, अगर मेरा को जो तजुर्बा रहा है, क्योंकि ऑलवेज यू शुड बी एन ओपन माइंड। ओपन माइंड मतलब पूरा आपको बच्चों की तरफ क्या बोलते हैं, यू नीड टू बिहेव लाइक ए बॉय, इज ए किड, राइट? द किड्स माइंड्स आर वेरी वेरी ओपन, दे कैन रिसीव एनीथिंग, राइट? और आपको ये पता है, यू नो योर सेल्फ, राइट, यू नो योर सेल्फ, आपको आपके बारे में जितना पता है शायद दुनिया को किसी को इतना पता नहीं होगा। आपका आपका खूबियां भी जानते हैं, आपका कमजोरी भी आप सबसे बढ़िया एसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आप कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं, हमको जब पहला दिन से ये सिखाया गया था और हमारे जो गुरु थे उन्होंने सिखाया था कि देखिए जो कस्टमर से बढ़िया टीचर कोई भी नहीं होता है, ठीक है? और आपका जो फील्ड है, जो आप क्योंकि हमारा सेल्स और मार्केटिंग में हमने रहे हैं, तो हमको जो सिखाया गया था, जो फील्ड है, इससे बढ़िया आपको क्लासरूम कहीं नहीं मिलेगा।
और ये इसको मेरे को और भी थोड़ा विंडिकेट किए, मतलब जिसको वैलिडेट किए। और we had a chance to meet Michael Dell in the year of 2014 during one of event in Austin। तो उन्होंने भी यही बात, बिल्कुल यही बात बोला था। मतलब एक कॉपी कॉपी को जो हमको जो सिखाया गया था, बिल्कुल सही शिक्षा दी गई थी। हमारा जो बॉस थे, जो हमारे जो सीनियर्स थे उस टाइम में, तो हमको सही शिक्षा मिला था। तो आप जब करोगे, हमको पता है आई कैन नॉट बी a good teacher, at least if I may be a good orator, right? Teaching is a different skill altogether. I may speak well, right? My posture may be well, but I cannot be very knowledgeable compared to a IIT professor or ISI professor, like, because in terms of their domain knowledge, right? So once you become receptive and once you become submissive, right? But again, you should be equally confident what you have been doing, because as you have been submissive, you are also the confident। आप जो करने जा रहे हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपना सॉफ्टवेयर के बारे में A to Z आपको पता है। ठीक है, तो राइट। वो एक, फिर आपको पहला बार थोड़ा हिचकिचाहट होगा, दोबारा थोड़ा हिचकिचाहट कम होगा, फिर ये आपका एक रूटीन बन जाएगा। तो वो जो कहावत हो ना, हम चलते गए कारवां बनता गया वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो जी। बाकी यही है। और ये सबसे बड़ा जो कमर्शियल शिफ्ट भी है। मैंने जो अपना जो जितना भी ये पर्टिकुलरली टीचिंग कंसल्टिंग में जो सीखा है, और पर्टिकुलरली मैंने देखा है, ये जितना भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या, आप कोई भी टूल ले लो, ठीक है, और ये जितना भी प्रैक्टिस करोगे, यू ऑल्सो साइमल्टेनियसली डेवलप ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द लॉजिक। आप देख लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स भी देख लो, आप कुछ भी, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे 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 ना, आपको एक, जितना मतलब एक बना लो, रूटीन बना लो। जैसे अभी भी मैं एक रूटीन बना के रखा हूँ, एवरी डे एटलीस्ट मिनिमम 1 hour आई विल डेडिकेट फॉर द माई सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिका। उसी चीज को मैं बार 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 करता हूँ, एंड एवरी टाइम इट सरप्राइज मी, एवरी टाइम इट सरप्राइज मी। तो जितना आप कोई भी चीज करते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतना सीख पाओगे, और यू विल बिकम मोर proficient master in your field। Now also I don't hesitate to submit I am an accidental trainer, I am not a professional trainer। मैं या। अभी भी बोलता हूँ मेरा कस्टमर को, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, क्योंकि जैसे मैं बता रहा, तो माय रोल वाज टू हायर आल्सो, एंड आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू गेट बेस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री। तो बहुत कामयाब लोगों को हम हमारे साथ जुड़े थे, ठीक है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, सिंस वी आर ए वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, to retain manpower was always a challenge for us। Getting manpower was not a challenge for us, but retain manpower, because the industry was growing exponentially along with the data, right? Salary was growing exponentially, the domain was growing exponentially, right? So it was very, very difficult to retain people in our district. Or even we get people, since we were not a very large corporation, right? To get experienced people and making them from the first day billable, it was always a challenge for us। तो हम उठाते हैं जितना हमारा एफोर्डेबिलिटी होता है, उसी हिसाब से हम हायर करते थे। तो उसमें क्या है, हमको 3 महीना कम से कम लीड टाइम लग जाता था किसी को सिखाने में और नहीं मार्केट नहीं। रेडी करने में। और ऑन एवरेज अगर मैं देखा हूँ, जो भी हमारे साथ 50 60 लोग काम किए हैं, मुश्किल से उनका 1.5 साल रहता है जो चर्निंग होता है। 1.5 साल, ठीक है, कोई 4 साल रह गया, कोई 3 महीना भी रह गया, तो आई एम टॉकिंग ऑन एवरेज हमारे साथ 1.5 साल जुड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका उनका ग्रोथ काफी हाई है। तो ऐसा एक ट्रांजिशन में हमने एक बंदे को हायर किया था, और उसमें असाइनमेंट किया था एक NITT एंड चंडीगढ़ वो में है, दैट इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। एंड द मैंडेट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, दे ट्रेन द ट्रेनर। वो ओके। लोग टीचर को ट्रेन करते हैं। हम्म। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट उनका वही है। तो
So they had purchased the 50 user of Statistica for a campus-wide installation. तो हमने लिया था और as a part of this deal, the 2-day training was also bundled. ओके। ठीक है, तो डील हो गया, सप्लाई हो गया। तो उस टाइम हमने एक हमारा एक बंदे छोड़ के चले गए थे। तो ही वाज फ्रॉम द बीआईटी मिश्रा, ही वाज परसुइंग हिज पीएचडी। तो उनका ही वांटेड टू गिव मोर टाइम टू हिज पीएचडी, तो वो छोड़ के देन वी हैड अनदर वन ऑन हिज रिकमेंडेशन। ही वाज आल्सो परसुइंग पीएचडी फ्रॉम बीआईटी मिश्रा बट डूइंग इन नोएडा। तो ओके। उनको हमने हायर किया। और उन्होंने करीब उनको बताया गया कि भाई आपको ये असाइनमेंट करना है, क्योंकि टिल दैट टाइम आई एम टॉकिंग, दिस इज द ईयर 2017, राइट। ओके। तो ये फिर मैं बोला ठीक है, आपको ये असाइनमेंट करना है तो यू नीड टू मेक रेडी। आई विल मेंटर यू, मैं आपको गाइड, बट आई एम नॉट ए टेक्निकल फोक हु कैन हैंड होल्ड यू इन एवरी स्टेज। ठीक है, तो उन्होंने करीब जब ये असाइनमेंट, जब ट्रेनिंग डेट फिक्स हो गया, उसका 7-8 दिन पहले उन्होंने बोला कि हमसे सर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई कैन नॉट डील विद दिस, आई एम वेरी सॉरी। और उनका भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, बिकॉज ही वाज नॉट डूइंग हिज जॉब फॉर मनी और समथिंग, राइट। ही वाज वेरी वेल टू डू फैमिली दिस थिंग। उन्होंने बोला कि सर हमसे ये नहीं हो पाएगा, आप देख लीजिए, कोई दूसरा आदमी देख लीजिए। So only the 7 days are left, right? And the payment is also interlinked with the completion of the training, right? It was the size of the deal was around 22-23 lakhs of rupees, right? So मैं तो बिल्कुल आसमान से ये हो गया, just I was about what to do, right? But again, I have been very fortunate in my surroundings. एक क्वेश्चन है मेरा बस, करियर गाइडेंस जो आप मतलब एनालिटिक्स में कोई करियर बनाना चाहता है तो उससे रिलेटेड। हाँ, जो आपके सपोज यू वांटेड टू डू ए career in analytics, देखिए, there are 3-4 broadly the job titles are there in the market. अगर आप डेटा से भी हो एंड यू आर ए डेटा टैलेंट गाय, अगर आपका ये स्किल सेट है, तो आपके लिए 4-5 ऑप्शन है। पहला तो होता है जो हॉटेस्ट करियर ऑप्शन है, डेटा साइंटिस्ट है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट में क्या है, ओनली यू नीड टू हैव ए साइंस बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड, right? This MBA or BBA, MBA, if you become to be a data scientist, हमारे कुछ बच्चे भी गए भी है, but it will be a slightly over ambitious, right? तो ये आपके लिए अगर डेटा एनालिटिक्स पे करना है, तो डेटा एनालिटिक्स इज जनरल फॉर ऑल, राइट। बट अगेन उनका चांस बढ़ जाता है, ये जब अगर आप एमबीए करके आते हैं या बीबीए करके आते हैं, या आपका स्टेटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आपका चांसेस ये बढ़ जाते हैं। और प्लीज माइंड इट वन थिंग, आप पाइथन सीख जाने से यू इट नेवर गारंटी यू टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, अभी भी दैट आल्सो व्हाट वी हैव बीन, हम भी इंटरव्यू में देखते हैं, आपको क्या आता है, नहीं सर मेरे को पाइथन आता है। बट सपोज यू आस्क व्हाट टेक्निक यू यूज फॉर ए डेटा नॉर्मलिटी चेक, वेरी रेयर दे गेट। सपोज यू आस्क व्हाट इज द हाइपोथेसिस assumption before you do a hypothesis testing। और आप डेटा साइंस प्रोजेक्ट करो, आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करो, ये जो फ्रेमवर्क है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, क्रिप्स फ्रेमवर्क हो गया, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मेरा राय ये होगा, मेरा इनपुट ये होगा, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर हो जाए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, जैसे आपको कोई पूछा कि डेटा नॉर्मलिटी चेक कैसे करेंगे, आप बोल सकते हो नहीं सर हमारे पास सपीरोविक टेस्ट है, हमारे पास एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है। ये मत बोलना कि पाइथन है वो वेरिएबल आर नो, सिंटेक्स मत बोलना, क्योंकि सपोज यू सी द सिंटेक्स ऑफ पाइथन आर और एनी सॉफ्टवेयर, इवन लाइक द जावा, टिपिकली द सिंटेक्स रिमेन्स सेम। आपको वो ही, और सिंटेक्स कुछ नहीं होता है उनका, खाली कॉमा, कर्ली कर्व, ये सब होता है।
बिकॉज यू आर जस्ट पुलिंग ए लाइब्रेरी। हम्म तो वो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं बनाता है। तो वंस यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, राइट, आपको कोई भी टूल मिल जाए, आपको शायद कोडिंग टूल भी मिल जाए। मैंने देखा है, हार्डली आई टुक 7 days टू गेट ए हैंड्स ऑन द आर। जो मेरे को जितना हम्म चाहिए था आर में, मेरे को 7 दिन लगा था आर सीखने में। इवन फॉर द, जैसे मेरे को और इंटीग्रेशन के लिए पाइथन का सीखना था, सेम 7 days इट हैड टेकन just for the Python, how to get the data, how to plot a graph, how to do a data quality check, how to do a descriptive statistics, hardly 8 to 12 to। तो मेरा जो इनपुट यही रहेगा कि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, और जो बोलते हैं इसमें मैथमेटिक्स चाहिए, ये चाहिए। तो मेरे को किसी आईएम प्रोफेसर ने बोला था बहुत पहले कि ये आपका अगर मैथमेटिक्स 10वीं क्लास तक भी स्ट्रांग है, right, this is not a very very heavy mathematics are needed to be a successful data scientist। बाकी टूल आपको कोई भी मिल जाए, राइट, और बाकी आपका मार्केट का डिमांड जो है, जैसे अभी पाइथन चल रहा है, राइट, यू शुड गेट इन इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड ऑफ द मार्केट। और कुछ सर, कुछ आप बताना चाहें स्टूडेंट्स को जो इससे हट करो, कॉन्सेप्ट्स और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हट करके और क्या स्किल्स ऐसी होती हैं? क्योंकि आपसे एक बार मेरी बात हुई थी तो आपने बताया कि एक सर थे जो जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छे थे, प्रोग्रामिंग नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कुछ चीज़ों में लैक कर रहे थे जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई। हाँ, ये देखिए, ये आपको जब भी फॉर फॉर ए वेरी सक्सेसफुल करियर, आप कोई भी काम करो, बिकॉज दिस प्रेजेंटेशन, ओके। और आप कैसे करके पैकेज करते हैं उसको, दैट डिटरमिन्स एंड दैट द डिफरेंशिएट बिटवीन द सक्सेस एंड फेल्यूर। बहुत सारे लोग हैं उसी चीज को इतना सुंदर पैकेजिंग करेंगे, उतना सुंदर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और वही हमेशा बाजी मार के ले जाते हैं। हम्म आपका नॉलेज कितना है, कोई आपका ये क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड में है, ठीक है, इवन कमर्शियल वर्ल्ड क्या, आपका रिसर्च इसमें भी है। आप किस हिसाब से करते हो, आप किस हिसाब से आपका सॉल्यूशन को जोड़ते हो इन इन बेनिफिट ऑफ द लार्जर मासेस, वो सबसे ज्यादा ये होता है। तो आप किस हिसाब से उसको, यू कैन डेवलप द दिस एज ए स्टोरी टेलिंग। जो भी आप कर रहे हैं, किस तरह से एक स्टोरी के हिसाब से आप उसको नरेट कर पाएंगे, ये आपको डिटरमिन करेगा आपका सक्सेस का भाई। तो आपको ओके। ऑलवेज पैरेलली, ये हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, दिस आर द सॉफ्ट स्किल। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। या ये नहीं राइट। कि आपको एक दिन आ जाता है, क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमने भी जब हमारा इनिशियल डेज ऑफ करियर में, हम भी तब तो मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, तो हम भी अपना शीशा का सामने करके जेस्चर पोस्चर, क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है, ये सब करना है। तो जो भी आपके पास संसाधन है, साधन है, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपने आप को, लेकिन सबका जो मूल मंत्र है, ये आपका प्रैक्टिस है। आप कितना अभ्यास करेंगे, उसी चीज को बार बार करेंगे, गलती भी करेंगे, करेंगे तो गलती भी करेंगे, ठीक है, उससे निराश मत होना। और मैं बोल के नहीं, आप किसी का भी सुन लीजिए, वही दैट इज द मेन मंत्र ऑफ सक्सेस, राइट। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपना ये कीजिए, कैसे करके जो भी करते हैं अपने आप एक छोटा सा मॉड्यूल्स बनाइए, वो कैसे करके मैं प्रेजेंट करूँ। आपका टारगेट ऑडियंस ये है, आप एक डमी जैसा ना वो कर सकते हैं। आप देखो आज के तारीख में किसी का भी कोर्सेस, ये अभी ज्यादातर गवर्नमेंट वाले नहीं करते हैं। अगर मैं किसी का भी देखता हूँ, जैसे पेड कोर्सेस होता है, कोर्सेरा, यूडेमी, वो बोलते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ये एक नया कॉन्सेप्ट, अगर मैं हार्वर्ड हाँ। का कोर्स देखा है, तो बोलते कैप्स्टोन। हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट, राइट। हम्म वही कैस्टन प्रोजेक्ट, और जो हार्वर्ड ने ये जो टर्म्स लेके आया, दिस इज द की डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्वर्ड एंड द अदर एनालिटिक ऑफरिंग।
कोई कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो उनको क्या है, क्योंकि पहले भी प्रोजेक्ट करते, दिस इज बेसिकली यू डील विथ ए रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। लेकिन वो जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बोल के एक टर्मिनोलॉजी यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन करके जो कर दिया उन्होंने, पैकेजिंग जो कर दिया, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन अदर्स एंड द हाउस। तो आपको ऐसे करके कैसे करके उसको पैकेजिंग करना है, जो भी आप करते हैं, तो स्टोरी टेलिंग कैसे करके उसको एक स्टोरी के हिसाब से प्रेजेंट करना है, दैट विल डिटरमिन योर सक्सेस। अब सर एक क्वेश्चन और स्टैटिस्टिका से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे बात हुई थी। तो वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी दिक्कत जो नॉन स्टैटिस्टिशियंस हैं सभी लगभग, तो उनकी मेन दिक्कत ये रहती है कि कौन सा, जैसे हाइपोथेसिस टेस्ट है, तो कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन में लगाना है। तो स्टैटिस्टिका जैसे मैं यूज करता हूँ, तो जो उसके ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मेरे को ये सारी चीजें, ये नॉलेज अंदर प्रोवाइड है उसके अंदर, या मतलब मेरे को आउटसाइड जाना ये पड़ेगा? ये देखिए, ये जो हाइपोथेसिस जो है ना, क्योंकि जो हाइपोथेसिस जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, मैं आपको जो हाइपोथेसिस जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रिसर्चर करता है, और हम्म। रिसर्चर अपना सिचुएशन का बेसिस पे करता है। हम्म। इसके लिए कोई जनरल थंब रूल नहीं है। हाँ, जनरल थंब रूल क्या है, आपको पी वैल्यू को कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम्म। नल हाइपोथेसिस क्या होता है। आप हम्म। अगर किताब के हिसाब से जाएंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अगर मैं देखूंगा मैं टी टेस्ट क्यों करता हूँ, एनोवा क्यों करता हूँ, वो बोलेगा सपोज आई वांटेड टू चेक द मीन ऑफ द इंडिपेंडेंट सैंपल, ये सैंपल करके वो इतना कॉम्प्लेक्स कर देगा, क्योंकि आप फिर उसमें ही उलझते रह जाएंगे। आज सीधा समझ लो, मेरे को जो भी करता हूँ, मेरा जो नल हाइपोथेसिस होता है, हम बोलते हैं उसको बोरिंग हाइपोथेसिस और मंक हाइपोथेसिस, वो हमेशा बेकार ही होता है, कुछ नहीं होने वाला। हम्म। ठीक है, उसको आप याद करके चलिए। ठीक है, हम्म। और उसी को मेरे को चैलेंज करना है। हम्म। ठीक है, तो उसका जो मेजरमेंट है हमारा, जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उसका मेजरमेंट स्केल है पी वैल्यू। ठीक है, वो पी वैल्यू को सही से समझ जाएंगे आप, तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाता है। और आज के तारीख में इतना बढ़िया रिसोर्सेस है यूट्यूब में, बहुत बहुत एकम्प्लिश्ड एकेडमिशियन प्रोफेसर इतने मजेदार तरीके से समझाते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक का यूज कर रहे हैं या एसपीएसएस कर रहे हैं। nobody restrict to go outside of the software to get into the YouTube channel and all। बहुत सुंदर करके आज के तारीख में आपके पास, वी आर लिविंग इन सच ए ब्लेस्ड टाइम, आज के तारीख में रिसोर्स का कोई कमी नहीं है। बहुत हम्म। सारा आई हैव मेड आर्काइव फॉर दैट व्हिच आर द यूट्यूब यू शुड रिफर। कुछ मैंने बना के रखे हैं, जब ट्रेनिंग देते हैं लोगों को बताते हैं, आप हम्म। आउटसाइड भी जाके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा। आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस और आउट ऑफ द वेरियस सोशल मीडिया वी हैव कलेक्टेड मेड एन आर्काइव, वो करके देखते हैं। लेकिन यही है, मूल मंत्र ये है कि आप सॉफ्टवेयर से बाहर भी जाइए, और आप बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर सेशन है, उसको आप रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज कीजिए, तो आपका समझने का बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, आप सर, आपको मैंने बहुत टाइम ले लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है निजाम। मतलब सबसे जो अच्छा लगा कि क्योंकि आप वॉलंटियरली कर रहे हो उसको, लोगों का भला के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका इंटेंट सही है, तो कंटेंट तो हमारे जैसे लोगों से मिल ही जाएगा आपको। अब बहुत, ठीक है, तो इंटेंट सही होना चाहिए। ठीक है, जी। और हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात करी, और भी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कुछ इनपुट ऐसा मिलता है जो मैं अपने करियर में अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, ये तो एवरीडे देयर इज ए, देखिए आज की तारीख में जैसे हम पहले बोलते थे, आपको एक इलिटरेट कैसे, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता,
पहले जमाने में हम उसको इलिटरेट बोलते थे या अशिक्षित बोलते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। आज के तारीख में अशिक्षित हम उसको बोलते हैं जिसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। पढ़ने लिखने सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। राइट। ठीक है, तो आज की तारीख में ये जो आप जो जिसको हम अशिक्षित का जो नया डेफिनेशन आया है, वो बोलते हैं जो सीखने का, पढ़ने का, लिखने का बंद कर दिया, वो अशिक्षित है। आप कितना पीएचडी कर रहे हो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू एनीवन। आप कितना रिसीव कर रहे हो और कितना शेयरिंग, क्योंकि एक ही चीज दुनिया में है, ऐसा चीज जिसको आप शेयर करने से वो दुगना होता है, वो है नॉलेज। आपके नॉलेज। पास पैसा है आपके पास या घर है, ठीक है, अगर कुछ है तो अगर आप उसको दे दोगे किसी के पास, आपसे हाथ से चला गया। चला गया। लेकिन आपके पास जो नॉलेज है, आप हम जैसे बात कर रहे हैं, मेरे से आपने एक लिया, ठीक है, और मैं आपसे एक लिया, तो मेरे पास दो हो गया, आपके पास दो हो गया, किसी का जी घटा नहीं, बढ़ा है। जी तो जी हमेशा आप सीखते रहिए और जी जी सिखाते रहिए, क्योंकि जी जी दोनों में जी ही अच्छा है, भला है। जी। और ये ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फिर आपसे जरूर बात होती रहेगी। धन्यवाद निजाम, थैंक यू ओके। very much for having me, and all the best and all success.